Hi everyone, good evening. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. कैसे हो Good सबके सब? evening, Good sir. evening, sir. Good How are evening, you? sir. How are you? All of you? कैसे हो आप लोग? Fine, fine. Thank you, sir. Hmm. Fine, sir. Sir, Hmm. So what's up? क्या क्या चैप्टर्स और कवर किए गए, क्या क्या और सीखा आप लोगों ने? चलो. So सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग या प्रैक्टिस छोड़ दिया? हेलो. Hello, sir. हाँ, Sir, practice. I said, are you guys practicing it or gone with the wind? परमिता, स्वाति, विश्वा, रीमा, गुलू, रानी, क्या है? कुछ कर रहे हैं? प्रैक्टिस किए? कुछ भी नहीं किए? चल रहा है सर. चलो, चल रहा है तो ठीक है. चलो, anyways, we'll do quick recap, or then I will also try to share you what kind of questions there is a possibility of that kind of questions it could be, and then we'll see in case any clarification needed, anything required, we'll get that done. Okay. So not to waste much of your time, I'm going to small PPT where we'll be talking about almost all whatever we have discussed so far, right? So today we are going to talk about जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, एक तरह से रिकैप करूंगा मैं, so that समझ में भी आए और फिर उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे. Okay. Right. So what we are going to talk today, overall डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम थोड़ा सा ये करेंगे. फिर सेक्शंस इन डिजिटल मार्केटिंग, वेब सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग रिकैप करेंगे. इट विल नॉट बी लाइक एनी प्रैक्टिकल सेशन एंड ऑल, बट विल बी डूइंग द रिकैप, एंड आफ्टर दैट ये पीपीटी भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस. ओके, ठीक है. तो अगर अगर लेट्स मेक टुडेज सेशन लिटिल मोर engaging and interactive. ठीक है. So in case I ask you guys after almost 2 months of time, like we started somewhere in early June and July gone, now it's August started, so almost 2 months. So if I ask you, any one of you, define digital marketing, what is digital marketing and why we need it and how we do it? Anyone can prompt in, no problem. তাড়াতাড়ি বলুন. Am I not audible to you guys? Hello? Yes, sir. Yes, sir. You were audible. So whatever you guys have understood it, just explain it so that we will go. There is nothing to test anyone's knowledge and all. Sir, shall I tell? Of course. Sir, digital marketing is a tool where we can use it over the electronic media by dint of website making, email marketing, LinkedIn, and various social platforms to reach to the expected customers in order to get our sales targets and earn something without physical attachment with the customer. And it is fast in achieving goals, and it is very fast in achieving goals without any personal or physical contacts. It acts as it is
as fast as electronic media. Wonderful. So this is what I expect from anyone. Need not to explain in typical bookish language. What you understood? है क्या डिजिटल मार्केटिंग, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? सो मिस्टर सुशित हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट. आई थिंक आप लोगों का भी इसी तरह का कुछ एक्सप्लेनेशन होगा. एनीथिंग दैट वी आर डूइंग online platform, be it on Google, be it on social media or email or any other medium, to reach your expected audience, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है उस तक पहुंचने के लिए आप जो भी प्रोसेस करते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं. एंड हाउ वी डू इट बाय SEO, वी डू इट बाय गूगल एड्स, वी डू इट बाय सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, Facebook campaign, we do it by LinkedIn, Twitter, Instagram, email marketing, and all these are various tools and techniques, gadgets used for digital marketing. Okay, now when we go for digital marketing, typically we'll be talking about two components. One is website and another one is other solutions. ठीक है, और हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं? हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग करते हैं क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन ऑब्जेक्टिव. किसी का ऑब्जेक्टिव है पॉपुलैरिटी, किसी का ऑब्जेक्टिव है सेल, किसी का ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन, किसी का ऑब्जेक्टिव है सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना. राइट, सो वॉट एवर बी योर ऑब्जेक्टिव, based on that your strategy, your process, your medium, your tool of digital marketing will vary, and that is what it is required. So digital marketing is objective based activity. Okay, now let's go on to look into websites and how, its kind. तो total website किसको कहते हैं? अब उसका कोई bookish language नहीं है, but for example you created certain page which is live on abc.com or xyz or something like that, so that you write something in a browser and it opens up from anywhere in the world, right? तो ये हमारा एक वेबसाइट हो गया. हम लोगों ने विक्स पे बनाया है. आप लोग बहुत सारी वेबसाइट्स को जानते हो जो .com पे होगा. ठीक है, जैसे amazon.com है वो ई-कॉमर्स बेस्ड है. उसी तरह से अगर देखें कि इन्फोसिस की वेबसाइट है या विप्रो की वेबसाइट है, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट है, तो वो ई-कॉमर्स नहीं है, वो कोई और नॉर्मल वेबसाइट है. राइट, तो वेबसाइट के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के वेबसाइट्स होते हैं? तो एक बेसिक और सिंपल वेबसाइट होता है, जैसे आप लोगों ने विक्स पे बनाया कि होम पेज है, अबाउट पेज है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, फिर उसके इंडिविजुअल पेजेस हैं, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट है. तो ये बेसिक और सिंपल साइट है. फंक्शनैलिटी बेस्ड वेबसाइट क्या होता है कि आप उसके अंदर आप रिक्वेस्ट फॉर कोड डाले या फिर इंगेजिंग होता है, यू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस एंड देयर विल बी सर्टेन आंसर्स. ठीक है, उस टाइप की चीजें जो है हमारी फंक्शनैलिटी बेस्ड या डायनेमिक एंड इंगेजिंग वेबसाइट्स में आ सकती है. जैसे चैट बॉट खुल जाता है, आपने कुछ क्वेश्चन किया, वहां से आंसर आ जाता है. सो दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स. सर्विस बेस्ड वेबसाइट, जैसे मैंने कहा अभी इन्फोसिस है, विप्रो है, या फिर और भी दूसरी वेबसाइट्स हो सकती हैं जो स्मॉलर कंपनीज या बिगर कंपनीज के हैं, जैसे पीयरलेस की खुद की वेबसाइट है, डिजिटोज की वेबसाइट है, और भी दूसरी वेबसाइट्स हैं, वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट हो गई. प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट किसको कहते हैं? जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए या फिर रेस्टोरेंट है या कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे शॉपिंग नहीं है, वहाँ पे शॉपिंग नहीं है बट प्रोडक्ट का डिस्प्ले है. जैसे आप किसी साड़ी की शोरूम देख सकते हैं, उनका अपना प्रोडक्ट रहता है, लिस्टिंग रहता है, बट वहाँ पे शॉपिंग नहीं होता. राइट. Second last is basically e-commerce. All of us are aware. Amazon is there, Flipkart is there, and there are many other platforms like Swiggy है, Ola है, और भी चीजें हैं. तो ये सारा जो है e-commerce based है. So we understand that. And product catalog किसको कहते हैं? वहाँ product display रहता है but purchase नहीं कर सकते. You can only request for inquiry. So these are various kinds of websites that exist. Now components of website, the moment we talk about components of website, ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना होता है. एक तो सबसे पहली चीज ये है कि जब हम वेबसाइट क्रिएट करने चलते हैं तो हमारे लिए लोगो होना चाहिए, और हम दूसरे कॉम्पिटिटिव वेबसाइट को हम थोड़ा सा रिव्यू किए हुए होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरह का वेबसाइट बनाया हुआ है, क्या क्या उसके अंदर पेजेस हैं. फिर आप टेम्पलेट चूज करते हैं. राइट, टेम्पलेट चूज करते हैं कि आपको इंटीरियर वाले हैं तो इंटीरियर वाले, मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल वाले, फैशन वाले हैं फैशन वाले.
तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब के टेम्पलेट चुनते हैं। फिर CMS सेट करते हैं। CMS किसको कहते हैं? कंटेंट मैनेजमेंट। जैसे आप विक्स में जाके पेजेस के कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, इमेजेस को अपडेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें कंटेंट मैनेजमेंट में आता है। फिर आया फिक्सिंग नेविगेशन, यानी अबाउट होना, अबाउट के बाद प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, उसके अंदर आप क्या डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, फिक्सिंग नेविगेशन हो गया। नेविगेशन बोले तो ऊपर जो चीजें आती हैं, लिंक्स आते हैं, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, और जो भी चीजें आती हैं वो नेविगेशन में आ गया। ओके, नेक्स्ट आता है CMS एक्सेस एंड अपडेट्स। अगर आपको, जैसे आपके पास CMS एक्सेस है और आप मुझे दिए, तो मैं उसके अंदर कुछ अपडेट कर सकता हूं। तो कैसे हम CMS के थ्रू मैनेज करते हैं? तो विक्स एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वर्डप्रेस है, या फिर शॉपिफाई आप लोगों ने सुना होगा, या फिर और भी प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो कि एडवांस लेवल के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इन सारी चीजों के अंदर मैनेज करते हैं। फिर हम कंटेंट और पेजेस क्रिएट करते हैं, वेबसाइट पे कंटेंट अपडेट करते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं। अगर फॉर्म है तो फॉर्म के फील्ड्स को हम सेट करते हैं, और फिर SEO को इंटीग्रेट करते हैं, यानी उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं वेबसाइट्स के, कि क्या क्या कंपोनेंट्स वेबसाइट में होते हैं। एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। ना अगर हम जाएं क्रिएटिव सर्विसेज, जो कि कैनवा को हम लोगों ने यूज किया, किस किस चीज के लिए कैनवा को यूज किया है? हम लोगों ने लोगो डिजाइनिंग के लिए किया, ब्रोशर डिजाइनिंग है, मार्केटिंग कोलेट्रल है, जैसे आप लोगों ने फ्लायर बनाया, वहां पे सोशल मीडिया का, फेसबुक का बैनर बनाया, कवर पेज बनाया आप लोगों ने, और भी मल्टीपल बैनर्स बनाए। ठीक है, और वहां पे वीडियोस बनाए या वीडियोस को एडिट किया। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हम कैनवा पे एज ए क्रिएटिव सर्विसेज के अंदर हम लोगों ने किया है। ठीक है, Am I sure we have done these things on Canva? आप लोग ने किया है ये सब? All of you have done it? Okay. Now let's move on to components of digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली चीज ऑर्गेनिक SEO की बात हम कर रहे हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जहां हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे। गूगल माई बिजनेस, ये आप लोगों ने पेजेस बनाए, गूगल माई बिजनेस बनाया, किसी का वेरिफिकेशन कोड आया, किसी का नहीं आया, तो दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस। और गूगल पे कितने तरह के एड्स हैं, रीच बेस्ड हैं, डिस्प्ले बैनर्स हैं, वीडियोज हैं, यूट्यूब के एड्स हैं, या गूगल पे एड्स आते हैं, गूगल के नेटवर्क में एड देते हैं, लीड जनरेशन प्रोसेस होता है, कॉल ऑनली कैंपेन है, या फिर ड्राइव टूवर्ड्स लोकेशन, you see some of the ads that you click on it takes you to the destination using Google Map, right? So ये सारे तरह के एड्स हम गूगल पे करते हैं। ऑन पेज SEO में क्या क्या आता है जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिस किया? कीवर्ड सिलेक्शन है, फिर कीवर्ड को मैपिंग, कीवर्ड विद वेबसाइट पेजेस, जो भी आपके 5 या 6 पेजेस बनाए हैं, कौन सा कीवर्ड है उसको वेबसाइट के पेज के साथ मैप किया, फिर उसके साथ टारगेटेड कीवर्ड्स हम लोगों ने मेंशन किए, फिर उसको टाइटल टैग बनाया, फिर डिस्क्रिप्शन बनाया, पेज का नेम है, हेडर टैग्स है, H1, H2, H3, ये सारे हेडर टैग्स हैं। फिर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, कि मैं हमेशा कहता रहा यू शुड बी हैविंग लार्जर कंटेंट, जो 100 वर्ड्स पैराग्राफ होना चाहिए, मल्टीपल पैराग्राफ्स होना चाहिए, उसके अंदर कीवर्ड्स को भी डालना है, उस कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी है, तो 2% होना है, राइट? तो ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट साइट मैप है, जो साइट मैप डॉट XML हम लोगों ने विक्स में देखा कि साइट मैप डॉट XML हो जाता है। वो क्रिएट करने के बाद उसको हम कहाँ सबमिट करते हैं? गूगल वेरिफिकेशन, यानी वेबसाइट वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन आता था विक्स में, वहां जाके जब हम उसको सबमिट करते हैं गूगल सर्च कंसोल में, तो हमारा वेबसाइट वैलिडेट हो जाता है और हमारी वेबसाइट लिस्टिंग में चली जाती है। और फिर गूगल एनालिटिक्स, अगर हम दूसरी किसी वेबसाइट को कोई CMS बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां पे गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं। तो ये सारे ऑन पेज फैक्टर्स हैं, राइट? तो अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ऑन पेज के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो इसमें से या तो 3 होंगे, 4 होंगे, कुछ मेंशन्ड होंगे, कुछ नहीं मेंशन्ड होंगे। सो वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट। सिमिलरली जब हम ऑफ पेज की बात किए, तो एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां मैंने आप लोगों को एक्सेल शीट भी शेयर किया था, कि लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी है, बिजनेस वेबसाइट्स में लिस्टिंग है, डायरेक्टरी सबमिशन है, क्लासिफाइड सबमिशंस हैं, सोशल बुक मार्किंग है, येलो पेजेस है, आर्टिकल प्रमोशन, कंटेंट मार्केटिंग,
right? So all these things that we have discussed and these are a part of SEO off page, right? इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले हमारा ऑन पेज का था और ये हमारा ऑफ पेज का है। ओके, सो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में यानी ऑर्गेनिक एसईओ में दो पार्ट आए, ऑन पेज और ऑफ पेज, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ गोइंग फॉरवर्ड फॉर सोशल मीडिया, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया, तो इसके अंदर भी ऑर्गेनिक होता है और पेड होता है, ठीक है। एंड आई एम श्योर वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, राइट। सो सोशल मीडिया का ऑर्गेनिक हमारा फेसबुक पे है। ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? विदाउट पेइंग एनीथिंग, वॉट एवर द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, ठीक है। तो फेसबुक पे आप जो नॉर्मल पोस्ट करते हैं वो ऑर्गेनिक पोस्ट कहलाता है। उसी तरह से इंस्टाग्राम हमने डिस्कस किया था, फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने का डिस्कस किया था, ठीक है। उसी तरह से ट्विटर का है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, तो ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनिक में आ गए। अब इन्हीं चीजों के ऊपर हम पेड कैंपेन करते हैं, जहां हम लोगों ने फेसबुक बिजनेस प्रमोशन देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, ट्विटर पे देखे, लिंक्डइन पे देखे, राइट। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम कर सकते हैं। Anyone is asking something? Hello? राइट, तो इसी तरह से पेड कैंपेन के अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं। फेसबुक के अंदर मार्केट प्लेस है, वहां पे लिस्टिंग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं थे, इसलिए उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, बट फिर भी एक मार्केट प्लेस एक ऑप्शन है जहाँ पे आप ऑर्गेनिक भी पोस्ट कर सकते हैं। एंड इट्स एज सिंपल एज पोस्टिंग समथिंग ऑन फेसबुक। ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मार्केट प्लेसेस, यू शुड हैव प्रोडक्ट प्राइसिंग और सर्विस प्राइसिंग फॉर दैट। तो जब आपका सर्विस या प्रोडक्ट का प्राइसिंग है तभी आप मार्केट प्लेस में लिस्ट कर सकते हो, राइट। एंड ग्रुप मार्केटिंग के आप बहुत सारे फेसबुक के अंदर या लिंक्डइन में ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें वी हैव डिस्कस। सो दीज आर अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। मिसलेनियस कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अगर हम देखें तो ईमेल मार्केटिंग, जिसको हम लोगों ने मेलचिम्प के ऊपर प्रैक्टिस किया था। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टर उदीपन हैज टेकन इट फॉर यू गाइस, ठीक है। और प्राइसिंग आइडियाज के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था इसमें एसईओ का, कि भाई उसका कैसे बजटिंग करते हैं, कि किस तरह के कीवर्ड हैं। अप्रॉक्सीमेटली जेनरिक कीवर्ड है तो 1000 रुपीज पर कीवर्ड पर मंथ हो, अगर लोकल कीवर्ड है तो वो थोड़ा सा और कम हो जाता है, हाइपर लोकल है तो और कम हो जाता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं यानी लंबे कीवर्ड्स हैं तो उसका और कम होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट 10,000 रुपीज टू 7,500 रुपीज पर मंथ हमारा 10 कीवर्ड्स के लिए हमारा एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि इतना स्पेंड होना चाहिए फॉर एसईओ एंड ऑल। सो वी हैव डिस्कस्ड दीज पार्ट, राइट। आई एम श्योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में मैं देख रहा था, तो 6 पेज की स्लाइड्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया था, सो दैट इज ओके। सो दिस इज अबाउट, so far we have covered about what are the topics that we have covered so far, okay। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह का हो सकता है। बट so far, in case you guys have any question or any conceptual understanding that is required, ask me upfront, because after today I think there is no, as such there is no class for my side, so I don't want you guys to be in a situation where you don't have conceptual understanding, or at least terminology और vocabulary से आप लोगों की understanding होनी चाहिए। So any one of you can ask. I'm stopping this screen share, but any one of you can unmute yourself and then can ask that anything that whatever you want to. No questions या कुछ? स्वाति, परमिता, जॉय, रीमा, टीना, रानी, आकांक्षी, any questions as such? All right, it's okay.
Are you guys able to see my screen? Yes, sir. Chalo, at least I am able to understand. When I'm asking questions, no one is answering. Huh? That's not. Okay. तो अभी ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता या इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, राइट? तो you can see there is a question and something written in green is its correct answer. So ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा या यही क्वेश्चन आएगा, बट आई जस्ट हाईलाइटेड इट सो दैट आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह का क्वेश्चन होगा और वहां पे जो भी पैटर्न होगा, बिकॉज आई हैव नॉट सीन व्हाट काइंड ऑफ ऑनलाइन सिस्टम दे हैव, बट यू मे हैव टू टिक ऑन. अगर ऑनलाइन होगा तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, या गूगल फॉर्म होगा तो क्वेश्चन होगा और उसके अंदर आपको आंसर टिक करना होगा. ओके, so here you can see I have created 25 question set so that आप लोगों को आसानी होगी, आप लोग इसको देख सकते हैं, and then I'll also share it in case required, so that you guys can have a reference kind of thing. ठीक है, अब लिखा हुआ है what is digital marketing, तो यहाँ पे तीन options हैं. Activities what we do on Google, Facebook और YouTube. Activities we do on outdoor advertising or print media. Correct answer is A. Okay, so whatever is highlighted, that is the correct answer. Similarly, why do we need digital marketing? Because one answer is everyone is doing, second is it increase business, it's a waste of money. So whatever you like which is appropriate from your point, you can do it. Next is what are the things covered under digital marketing? So we have discussed SEO, Google ad management, social media, email marketing, all of the above. So all of the above, right? तो इसी तरह के होंगे. जैसे SEO का फुल फॉर्म क्या है? SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, so you should be clear about it. उसी तरह से SEO में क्या क्या कवर होता है? कीवर्ड रिसर्च ओनली. क्या सिर्फ हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसमें, या कीवर्ड बनाते हैं, टाइटल टैग बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, हेडर टैग्स रहते हैं, तो ये होता है. या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, BNC, नन ऑफ द अबव. तो हम SEO में क्या करते हैं? ऑन पेज और ऑफ पेज. तो ये जो कंपोनेंट है ये ऑन पेज का है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ऐसे ही लिखा गया है, सो BNC बोथ. So that's how you have to understand it and do it. Why do we do keyword research? It only gives search volume, या ये भी बताता है कि कौन कौन सा various keywords है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं. तो if more than one answer is correct, that kind of scenario also you have to understand. उसी तरह से कीवर्ड डेंसिटी. एक पैराग्राफ में जैसे हमने बताया था, डेट कंसोलिडेशन का मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि जब 100 वर्ड्स पैराग्राफ है तो उसके अंदर एग्जैक्टली सेम कीवर्ड 2 टाइम्स इट कैन बी रिपीटेड. सो दैट मीन टू से कीवर्ड डेंसिटी इज 2%, राइट? तो हमारा कीवर्ड डेंसिटी जब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो कीवर्ड डेंसिटी कितना होना चाहिए? वो 2% होना चाहिए, राइट? सो व्हाट फॉर वी डू गूगल एनालिटिक्स. गूगल एनालिटिक्स से हमको क्या मिलता है? हमको ये पता चलता है कि कितने लोग वेबसाइट पे विजिट किए हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से विजिट किए हैं, किस सोर्स से आए हैं, आने के बाद उन्होंने क्या किया है, कौन से डिवाइस से यूज किए हैं, कौन से डिवाइस से वो आए हैं. तो ये सारी चीजें पता चलती हैं, तो इसलिए गूगल एनालिटिक्स उसके लिए है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेटा डेटा. मेटा डेटा में क्या क्या आता है? हम लोगों ने देखा उस दिन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में कहते हैं. वेबसाइट कोड ऑप्टिमाइजेशन नहीं आता, ठीक है. तो मेटा डेटा में क्या आता है? टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग आता है. तो इस तरह से आपको आपके MCQs होंगे और इसी तरह से आप लोगों को आंसर करने का होगा. उसी तरह से SEM का फुल फॉर्म क्या होता है? SEM का फुल फॉर्म सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, राइट? हम गूगल पेड कैंपेन में किस किस तरह का कैंपेन करते हैं, ठीक है. टेक्स्ट, अभी जैसे मैंने PPT में भी आप लोगों को बताया, टेक्स्ट ऐड है, बैनर है, वीडियो है, कॉल ऑनली है, इंस्टॉल मोबाइल ऐप है, तो ये सारी चीजें हम गूगल एड्स पे करते हैं. उसी तरह और डिस्प्ले ऐड में क्या आता है? डिस्प्ले ऐड में बैनर्स को डिस्प्ले ऐड कहते हैं और टेक्स्ट को टेक्स्ट ऐड कहते हैं, राइट? तो ये ऑफ कोर्स ये अगर देखिए व्हाट इज डिस्प्ले ऐड, वेबसाइट लिंक्स टू डिस्प्ले, इट्स नॉट लिंक, इट्स अ बैनर ऐड विच डिस्प्ले. जहां पे भी कुछ दिख रहा है वो बैनर है, उसको डिस्प्ले ऐड कहते हैं. यूट्यूब में किस तरह के एड्स आते हैं आप लोग जानते हैं. आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे मूवीज भी देखे होंगे, बहुत सारे कंटेंट भी, न्यूज भी देखते हैं, वहां पे ऐड आता है, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल ऐड आता है. तो यूट्यूब के कितने तरह के एड्स होते हैं? 2 तरह के एड्स होते हैं, स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल. स्किपेबल क्या होता है? स्किप आफ्टर 5 सेकंड्स करके आता है. नॉन स्किपेबल, इट कंटिन्यूज फॉर मोर देन 10 सेकंड्स एंड फाइनली इट एंड्स एंड देन यू आर
watching a video again. So there are two kinds of YouTube ads, skippable and non-skippable. Skippable ads कितने सेकंड का होता है? less than 10 seconds skippable ads हो जाते हैं, ठीक है. Non-skippable larger than that. ओके, तो यह पूछा जा रहा है एनीथिंग लेस देन 10 सेकंड इज स्किपेबल ऐड, ठीक है. और सोशल मीडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल मीडिया. तो यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप सोशल मीडिया है क्या, या गूगल है, या फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर. तो व्हाट सोशल मीडिया क्या है? तो जो कॉम्बिनेशन हमारा करेक्ट है उसको हम हाईलाइट किए हुए हैं. व्हाई डू वी नीड सोशल मीडिया मार्केटिंग. ऊपर एक क्वेश्चन था व्हाई डू वी नीड डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे ये क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड सोशल मीडिया मार्केटिंग. आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, या फिर आप लोग को मेरी आवाज या मेरा प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है? तो मैं थोड़ा और स्लो जाऊं और एक एक क्वेश्चन को फिर और एक्सप्लेन करूं आप लोगों को. नहीं सर, समझ में आ रहा है. नहीं सर, you are understanding. राइट, ओके. तो अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या क्यों करते हैं? इंक्रीज अवेयरनेस, कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, या ROI विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो किस लिए हम सोशल मीडिया पे कैंपेन करते हैं? तो अगर ये तीनों सही है तो तीनों सही है, या फिर आपको जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है उसके अंदर एक सही हो, दो गलत हो, तो जो सही होगा उसको आप ये कर सकते हैं, ठीक है. उसी तरह से है व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन्स वी कैन डू ऑन फेसबुक. किस तरह का कैंपेन करते हैं? तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि बूस्ट कैंपेन, इंक्रीज ट्रैफिक, लीड जनरेशन, ये सारा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, राइट. तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया और फेसबुक के ऊपर हमारा कैंपेन होता है, ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है फेसबुक मार्केटिंग. फेसबुक मार्केटिंग का हम लोगों ने जब एक सेशन किया था तो उसके अंदर ये था कि भाई जो स्टेप्स थे उसके अंदर ये था कि हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसके अंदर जो है एड सेट्स होते हैं, फिर उसके बाद एड्स आता है. तो ये ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हुआ. उसके बाद नेक्स्ट जब गए थे उस स्लाइड पे, तो काइंड ऑफ ऑडियंस, तो वहां पे 3 काइंड्स ऑफ ऑडियंस थे. एक था ऑडियंस जो था वो कस्टम ऑडियंस था. दूसरा हमारा नहीं सॉरी सबसे पहला जेनरिक ऑडियंस था, वेयर बेस्ड ऑन जो भी आप एज ग्रुप और लोकेशन, जेंडर, ये सारी चीजें चूज करते हो, फेसबुक अपने आप सजेस्ट कर देता है, राइट. दूसरा था कस्टम ऑडियंस, जहां के हमारे को एक ऑप्शन है कि भाई हम अगर हमारे पास ईमेल डेटाबेस है या फोन नंबर है तो उसको अगर हम अपलोड करते हैं तो हमारा ऐड उन्हीं लोगों को चलेगा, तो उसको कस्टम ऑडियंस कहते हैं. लुक अलाइक तीसरा तरह का ऑडियंस होता है, क्या सिमिलर टू द ऑडियंस व्हाट यू हैव क्रिएटेड, उसी से मिलता जुलता. तो फेसबुक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज कि 3 तरह का ऑडियंस होता है. तो इसी तरह उसी के लिए क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इन फेसबुक. 3 काइंड्स ऑफ ऑडियंस, 2 काइंड्स, ये काइंड्स होना चाहिए, किड्स लिख दिया मैंने. 2 kinds of audience, 3 kinds of audience और 5 kinds of audience. So it's a 3 kinds of audience. ठीक है. Type of images to be used in Facebook marketing. Facebook marketing में कितने तरह के images यूज होते हैं? तो आपको भी पता है सिंगल इमेज है, कैरोसोल है, फिर मल्टी इमेजेस हैं, राइट. तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है, सिंगल है, मल्टीपल है, कैरोसोल है, और ऑल ऑफ द अबव. अब ये आता है जो हम लोगों ने बहुत शुरू में किया था कि कैनवा के ऊपर हम लोगों ने 4 बैनर्स बनाए थे जो कि 1080 बाय 1080 डायमेंशन के हम लोगों ने बैनर्स बनाए थे. याद है आप लोगों को? यस सर. यस सर. राइट. तो अब यहाँ पे देखिए कि पिक्सल्स, कितने पिक्सल्स के बैनर होते हैं फेसबुक का नॉर्मली, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है. लिंक्डइन में क्या होता है? लिंक्डइन इंपॉर्टेंट क्यों है? इट्स अ सोशल गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इट्स अ जॉब पोर्टल और प्रोफेशनल एंड बिजनेस नेटवर्किंग, राइट. तो जॉब पोर्टल भी नहीं है और सोशल गैदरिंग भी नहीं है, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग है. तो ओवरऑल जो क्वेश्चन आएगा वो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होगा आप लोगों को, कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं आया है. प्रैक्टिकली तो आप लोगों ने काफी कुछ किया हुआ है, राइट. तो उसी तरह से ये करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि कौन सा टूल हम फ्री वेबसाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? वर्डप्रेस यूज करते हैं, शॉपिफाई यूज करते हैं, या विक्स यूज करते हैं? तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम लगाया है विक्स पे, राइट. सो विक्स है. 23rd क्वेश्चन है कि विच डिजाइन टूल वी यूज टू क्रिएट वीडियोस? कैनवा, गूगल, फेसबुक और ट्विटर. कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? नीड नॉट टू से, आप लोगों को पता है. कैनवा पे आप लोगों ने यूज भी किया है, इंपोर्ट भी किया, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी किया है, ठीक है. वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम
बैनर्स भी बनाते हैं, मार्केटिंग मटेरियल भी बना लेते हैं, वीडियोस भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पावटून है जिसपे सिर्फ वीडियो बनता है, कैपविंग है उसके ऊपर भी सिर्फ वीडियो बनता है, कैनवा एक ऐसा टूल है जिसके अंदर सारी चीजें हम कर सकते हैं। लास्ट, नेम ईमेल मार्केटिंग टूल, तो वो तो सबसे लास्ट टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को बताया था, विच वाज मेलचिम्प, ठीक है। तो ये इस तरह के आपको जनरली, आई एम नॉट वेरी श्योर कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन होगा या यही इस, बट मोर और लेस इसी तरह का कंसेप्चुअल होगा, राइट। तो आप लोग अगर जो मैं पीपीटी आप लोगों को आज मैं दिखाया हूं और पहले भी जो मैंने आप लोगों को पीपीटी शेयर किया है, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोग गो थ्रू हो लिए तो मेरे ख्याल से इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू क्रैक और क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। आप लोग जिस तरह से पैनिक हो रहे थे, मैं देख रहा था ग्रुप में कि कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा। सो नथिंग टू वरी, बिकॉज आई वाज सपोज टू टेक दैट सेशन फॉर यू गाइज। तो मैं श्योर था कि आप लोगों को मैं बताऊंगा, बट मोर और लेस ऐसा ही होगा, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू गाइज हैव एनीथिंग, अगर आपने कुछ किया है और वहां पे रुक गए हो, बिकॉज रेडीनेस फॉर योर एग्जाम, दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। तो एक तो क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बताया, दूसरा रिकैप भी किया, एक एक टॉपिक को मैंने रिकैप किया है कि किस तरह से हम इस एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग बता सकते हो, और एक फीडबैक भी आप लोग चाहो तो दे सकते हो कि कौन से चीज आप लोगों ने ज्यादा अच्छा समझा, कौन सी चीज कम समझा, किस चीज में आप लोगों को ज्यादा स्ट्रगल हुआ समझने में, किस चीज में आप लोग आसानी से समझ लिए। सो ओवर टू यू गाइस। आप बोलो तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पेपर का फिर से गो थ्रू आप लोगों को करवा दूं, बट आई फील यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, you don't need it. Now platform is open for everyone. Why so much of silence? Hello, sir. The Uh-huh. mode of exam will be mobile device or any laptop, or both we can do it in. You can do in both ways, what I understand. As I said, like they have not informed me कि वो किस तरह से होगा, but more or less what I understand, it will be, I expected someone from PSA that they should be over here. I posted them personally as well कि they should be there. क्वेश्चन कैसा होगा वो तो मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ सर, वो ठीक है, आपने बताया। मोर और लेस ये गूगल फॉर्म स्ट्रक्चर में होगा, गूगल फॉर्म स्ट्रक्चर में होगा मोर लाइकली। ओके सर। So you can open it on mobile, you can open it on laptop, whatever it is. ओके सर। सर हमारे क्लास के टाइम नहीं होगा क्या? I doubt, मेरे ख्याल से शायद दिन के टाइम में होगा वो क्वेश्चन। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन चीजों को लिख लेता हूँ so that I can put a question straight away to Miss Kanyakumari or Mr. Udipan. Point number 1, platform. Point number 2, timing. Okay, anything else? और पूछिए। मेरे को सर कोई कोऑर्डिनेट करने के लिए तो होगा ना शायद, एनी टेक्निकल प्रॉब्लम अराइजेस ओवर देयर। बिल्कुल। ओके सर कितने मार्क्स के होंगे? ये एक मार्क्स के, कितने मार्क्स के सर? ये तो सर ये तो नहीं सर, 100 मार्क्स का होना होगा तो 1 घंटा में 100 मार्क्स का आंसर देना हम लोग का दिक्कत होगा ना, इसलिए पूछा। थोड़ी बहुत समय लेके ज्यादा इसलिए पूछ रहे हैं कितने मार्क्स के होंगे सर। ये तो आपको जानना ही होगा सर, बोलना ही होगा सर, कितने मार्क्स के होंगे? ये भी नहीं पता है मेरे को। नहीं सर, आप जानते हैं, आप नहीं बताएंगे हम लोग को। सर कितना क्वेश्चन होगा आप? सर कितना का? आप तो यहीं पर 25 क्वेश्चन दिखाए तो हम लोग की 25 क्वेश्चन होंगे। हाँ सर 25 क्वेश्चन सर 2 मार्क्स का सर, 50 मार्क्स का। हम क्या लोग करना है यार, सही आइडिया दीजिए।
मोस्ट लाइकली आई फील अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक ये 100 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है, कि एवरी क्वेश्चन जो है आपके 4 मार्क्स से 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 ऐसा करके हो सकता है, यस सर, यस ठीक सर। है। बट ऑन टॉप ऑफ इट मेरा ख्याल से बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड पैरामीटर नहीं है, बट ये है कि आप लोग थोड़ा सा ये कोशिश, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन देखे ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डोंट गेट वेरी फास्ट कि हाँ चलो भाई हमने करके खत्म कर दिया। वजह क्या है कि एटलीस्ट आई थिंक यू शुड स्कोर 60 और 65% आपको स्कोर करना चाहिए। दैट मीन टू से अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो आप ये मान के चलो कि आपको कम से कम 15 क्वेश्चंस तो आपको बहुत अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप जो है अगर 100 मार्क्स का है 15 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो और 4 मार्क्स का मैं मान लेता हूँ 25 क्वेश्चन से मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 100, तो 15 आप कर रहे हो तो 60 पहुंच रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपको 18 क्वेश्चंस 19 क्वेश्चंस 18 to 19 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करना चाहिए, व्हाट आई फील। तो व्हाट क्या क्वेश्चन टफ था क्या? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल टफ नहीं है सर। टाइमिंग अगर ना इवनिंग हो तो ठीक है। मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको, ठीक है। मेरा ख्याल से दे मेंशन दैट कि 10th को या किसी दिन तो, बट आई एम लिटिल बिट डाउटफुल, क्योंकि आज ही एक मैसेज था ग्रुप में कि वो सारे कोर्स मटेरियल जो है 2-3 दिन के बाद अवेलेबल होगा, देन सो आई डोंट थिंक दैट इट विल बी सो फास्ट कि 1-2 दिन के अंदर ही एग्जाम होगा, बट फिर भी मैं ये चीज कंफर्म करके आप लोगों को अपडेट करूंगा इस चीज पर। Sir, Sushrit here. यस सर। Actually, back to your question about technical session. What is found difficult or find not sir? Oh, actually, that is actually regarding website preparation. Okay, up to search engine optimization, I had gone through. After that, there are certain special aspects. That is, I asked you also regarding multi-page making Right. and linking to other sites and commercial aspect, because my Google site has been scrutinized. Okay, my Google website that has been verified and as per card received and the code available. So that was the most after search engine optimization. These are the things what I am getting something or not confident so much, नो प्रॉब्लम। because at that time also we had to little bit fast because time was not there. That's okay sir, video is completely there with you, video will not ask for time, आप एक बार देख हाँ, लीजिए। वीडियो तो सर एक्चुअली क्या है सर, लेट मी फ्रैंकली सर, वीडियो का आवाज बहुत कम है सर। नहीं, आप आप दूसरे को हेडफोन लगा के सुनिए सर, आवाज अच्छी आएगी आपको। हाँ, हेडफोन लगा के अच्छा अच्छा, हाँ सर, ठीक है, सर- दैट इज द ओनली। जी सुशीत साहब, आप यू कीप लिसनिंग, आई एम लाइक फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है कुछ है आप टेक्स्ट करो, वी विल सी व्हाटएवर द पॉसिबिलिटी एंड देन वी विल डू Sir, sure sir. Okay, thank you for your positive attitude in rendering our doubts of this. दैट्स ओके। सर मैं सोनाली बोल रही हूँ सर। हाँ, सर लास्ट 2 क्लास जो उद्दीपन सर और मिसेस मिस पायल हाई दिए थे ना, वो दोनों में एक था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और एक था हम लोग को ईमेल एटिकेट, एक्चुअली इंटरनेट एटिकेट। सर उसमें कुछ क्वेश्चन आएगा क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। आप तो जो किए थे वो तो सब कुछ में हम लोग को सामने आया, किंतु सर जो 2 टॉपिक हम लोग को साथ शेयर किए थे वो टॉपिक तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, इसलिए आपको पूछ रही हूँ। मोस्टली सिक्योरिटी के तौर पे कुछ अगर पूछें, एनवायरमेंट रेडीनेस के ऊपर एक आध क्वेश्चन पूछें तो पूछें, आई डोंट थिंक, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी 2-4 क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा एक पैटर्न है, दे मे ऐड फ्यू क्वेश्चंस बट आई डोंट सी मच। ठीक है सर। सर एसईओ में जो ऑफलाइन जो पेज है ना सर, वो एक बार अगर होता तो ज्यादा बेहतर। एक बार ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने एक दो डेटा शीट आप लोगों को शेयर किया था। तो उसमें जो साइट्स थे उस पे जाके कुछ देखा क्या, रजिस्टर करने की कोशिश किया आप लोगों ने?
Swati, you were asking, so I asked you. हाँ सर, मैंने किया है सर, लेकिन एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मतलब और एक बार ब्रश अप कर देते तो ज्यादा बेटर होता सर। ब्रश अप कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। क्या करूंगा आज तो फिर, because if I start doing it, it was at least half an hour, 45 minutes thing, at least 45 minutes. ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ फिर। आप देख लो, in case still if you have anything, can ask it. अच्छा, अब आप लोगों में से ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे 15, 20, 22 लोगों में से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 members are available over here. On and off अगर देखा जाए तो 12 to 13 members were little more proactive and active throughout the session, what I understood. तो आप लोग जब शुरू किए थे और आज जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, what is your own gut feel for yourself? कि आपको क्या लगता है कि आप ये तो देखो 45 डेज में या 2 months के अंदर हम लोगों ने सिर्फ इनिशिएट किया है, राइट? बट डू यू फील दैट यू गाइस कैन कंटिन्यू ऑन योर ओन लर्निंग एटीट्यूड एंड कीप ऑन गोइंग, और दिस इज नॉट सफिशिएंट एनफ जो कि आपको करियर में कुछ भी हेल्प कर पाएगा या कुछ भी नहीं हेल्प कर पाएगा? सो हाउ यू गाइस फील अबाउट इट? Am I clear about my question? आप लोग समझे? यस सर, Yes, sir. अनाक्षी बोल रही हूँ सर। हाँ हाँ, अनाक्षी बोल रही हूँ सर। जी अनाक्षी। The thing was that however we have started, it was very fine because Canva से लेकर अब तक email marketing तक आप बहुत अच्छे करके समझाए हैं सर। लेकिन the thing is that I have to learn in the process, because if I want to do the off page one and all that submission links I want to do, Right. Google Analytics जानना है, email marketing करनी है, so I have to work very hard Work, with yes, all yes. these things. It Right. was just a starting that you have drive us into. Right. We have to go through all the things Correct. because we haven't had so much of time in this past 2 months. Like we were engaged in website only, Canva only, and after that ads were given also. You have done the classes of ads, Google ads, LinkedIn, Twitter, all that was very good. But the thing is that I have to brush up with all the thing again and again. Otherwise we will forget everything, because it is a practical lesson. And like off page SEO, we have to build our link also throughout the thing. You have to do, yes. Similarly, email marketing, you have to build your own database, email database, and then you have to send. Practical orientation नहीं रहेगा तो sir we can't understand like that. Case study रहेगा, then only we can understand the thing. अब आप लोगों को करना है, आप लोगों ने जैसे अपना अपना इंडिविजुअल वेबसाइट बनाया था, ट्रिक्स पे बनाया, जैसे भी बनाया, तो अब उस चीज से रिलेटेड एक ऑडियंस बिल्डिंग एक्टिविटी आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे आप लोग ड्रॉप कर लेते हो देन यू विल फॉरगेट इट वेरी फास्ट. So as Anakshi, you said it rightly that over a period of time you have to practice it, and not only practice but practice it very hard so that things are there, and then you keep on updating yourself, because every next month there are something new which comes in. So you have to keep practicing, and then only आपको उसके अंदर कुछ एक इंसाइट मिल पाएगा कि भाई कैसे उसको किया जाएगा. सर मुझे लगता है कि कोई जॉब वगैरह वी शुड डू, अदरवाइज ये अकेले अकेले करके कोई काम नहीं है सर. ऐसे ही कोई फ्रीलांसिंग हो या ऑन जॉब ट्रेनिंग हो, वैसे कुछ करनी चाहिए. अदरवाइज अकेले खुद का वेबसाइट बना के कितना कर सकती हूँ मैं ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर करेक्ट. अगर कोई प्रोजेक्ट्स अगर कर लेते ना हम लोग तो शायद ठीक रहता सर. मैं तो इन लोगों से बोला था, because they have so many courses. PSA has lot of courses, and I asked them, why don't you assign some assignment little longer so that everyone will be working on the real time scenario. They will, I'm like, हाँ सर बहुत अच्छा होता है. Actually, sir, हाँ. भाई ये हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, आपको NSDC का सर्टिफिकेट आ जाएगा, that is self satisfaction. But if you start working on real time project and real time scenario, then something will come out. तो आपको ये रहेगा कि भाई आपने 3 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, so you'll get okay fine, these are the activities that you have done and this is the kind of traffic. जैसे उस दिन रिया का मैंने किया या क्या,
भाई गूगल में अगर कुछ आया तो यू फील गुड दैट ओके फाइन फॉर फ्यू ऑफ द कीवर्ड्स इट स्टार्टेड रैंकिंग, बट उस रैंकिंग से क्या ट्रैफिक आया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कहाँ जाना है, वो अगर हम उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको समझ में आएगा। उसी तरह से मैंने ये बोला तो था इन लोगों से, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ PSA, आई एम एक्सटर्नल फैक्टर, तो मैं एक लिमिट तक ही बोल सकता हूँ उन लोगों को। हाँ सर, वो तो अब भी समझ सकते सर। एक्चुअली कैसे है ना सर, हम लोग ना मतलब अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है हम लोगों का, जी जैसे लग रहा है ना मतलब जस्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मतलब थियोटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली जब करने जाएंगे ना सर तो जो प्रॉब्लम होता है ना वो प्रोजेक्ट्स में ही पता चलता है सर। तो इसीलिए बेटर Sir. होता है हम लोग छोटे प्रोजेक्ट। Sir, Sushil speaking, sir. या Sir, it is a nice experience from you because we started from zero. Now we are something, say, if we describe it as TTL technology, I can say that it is 2 or 3. But within this short time, it is very, we do not have any shy to tell that we cannot go advanced level. We have got a very basic idea above from your class, and up to website building, we have nicely done it through your learning process. But to get expertise or to go on further working on it, we have to have some I think PSA has same kind of courses for advanced level, and after this course also, I don't know. I was seeing somewhere, but one thing we can say, but after that, up to Canva and Wix website, Google website, for the depth learning, since you had to go little fast after that, so some of the aspects what we could have done there could not do because of our non uh, expertise in it. But surely I can say that we were at zero. I basically I'm telling you, we started from zero, but now it is up to 3. If we justify it at TTL logic, you must be knowing some TTL logic. So this is my feedback. So as you told, this is very much practical, that once the course will be end, our all endeavors also will be end, which I do not want. But my aspiration is you guys have to keep on doing it. my aspiration is I want to do something rightly sitting at home, because now doors are very much open. Right. If any of our colleague students, they also come forward, because to the girl students it is very difficult to approach them because of certain limitations, you know. Right. So this is my feedback, sir. Right, right. Thank you very much, sir. I understand it, because everything I also understand. I was not able to do justice with the kind of timings that has been allocated, and still, Yes, still few of the topics you don't believe. Few of the topics like development of website, right? sir. The way that I went in detail on Wix, because at least readiness for digital platform, be it Facebook, Instagram को कैसे create करके Facebook से link करना है, उसका business account में कैसे change करना है. So all these things, I'm like, it was, if you see the outline which was there, it was very basic. But even for Canva, it was not that detailed. Canva was supposed to be finished only in 2 days. Right. Sir, and I have taken almost, I think, 1 week time. You took initially you took much time. And then because I knew that you guys are not habituated of these things. Once you guys are habituated, then on Wix also we have taken almost a week's time. So 2 weeks or 2.5 weeks of effective learning that has gone in making ourselves ready, digitally ready. That what are the gadgets, what are the platforms that we'll be using. Then practical sessions for assignment that was given for youth skill day as well. Few of you have actually done it. So when we talk about practical sessions, these are something that you guys have initiated, but henceforth what we have to do is, like, we have to ask for certain projects
or get engaged with any kind of digital media agency or any kind of company that yes, I'll be doing this for you, and then eventually you will Yeah. be able to learn it. Yes. Because believe me, for me, when I started learning it that time, hardly any institution was there, and I learned it on my own. I was taking printout of website codes to understand कि टाइटल टैग कहाँ पे डालना है, उसके लिए मैं 15 पेज का प्रिंट आउट लेके फिर पढ़ता था एक एक लाइन, तब जाके समझ में आया अच्छा फाइन यहाँ पे टाइटल टैग डालना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टैग डालना है. दैट टुक मोर देन 3 months, or in fact more, because I am not a coder. I am basically from economics background and then followed by information systems management, right? So understanding that and taking it, so it has taken long time, but thing is like it's only self learning. Exactly, sir. Actually, that is the basic feature of an individual, how he can grow. That is there. That is the basic. But he used to learn of his own. But Right. only thing in our time also there was much resources available. But nowadays, you know, we are Right. So- skipping the lecture, since we know that if we skip the lecture, I can get it from Google or YouTube, or we Right, can learn it and we can copy paste it there from right, there. right, right. So that So, is the availability. Yes, sir. No, that is fine, but at the same time, you also get an opportunity to understand. Say, for example, tomorrow you have to learn, you are confused about off-page optimization, or say, for example, setting up Facebook paid account, right? So what you have to do, either you will go with my lecture or you will go and search few more lectures Yeah, on okay. YouTube to identify Yes, what sir. could be. I'm like, there is a possibility you will get it in English. There is a possibility you'll get in Bengali itself, that few of the trainers or might have posted that kind of videos as well. So it could be easy for you, or it could be but this is just to have a curiosity building activity that has happened कि आपके अंदर एक कहिए कि एक कीड़ा जो है एक डेवलप हो गया कि now you have to practice it, you have to do it on your own. Yeah. Now the way that Anakshi said, like, yes, it is correct that you have to get associated with either any of a company or get some assignment so that you start working, focus on it without understanding that okay fine, you'll be getting a monetary benefit or not, but at least practice it so hard that yes, you are able to complete whole cycle. And it cannot, say for example, how many man hours that we have spent together, probably 30 or 40 maximum. हाँ sir, हाँ. अब 30-40 घंटे, which is equivalent to if we consider 8 working hours per day, ठीक है? एक ऑफिस में बहुत सारा नॉलेज सर, बहुत सारा नॉलेज. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 8 घंटा एक दिन में हम काम करते हैं और एक वीक में 5 वर्किंग डेज होता है, तो 8 5 जब 40, so in 40 hours means one effective full week time, whatever we have learned to that level. So digital marketing is such a ocean that at least you have to dedicate yourself for 6 months completely, then you will be able to understand okay fine, I have a control on this and that. We only spent 1 week time. Am I correct or not? Yes, 8 sir. work, right? So Yes, sir. अब आप खैर आपका जी खैर जी आपका वही बात ठीक है, आप एक कीड़ा आप लोग को दे दिया, वो कीड़ा लेके हम लोग को ही करना होगा, हाँ, ये बात अब- ही ठीक है. अब जहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं स्टक हो गया, कुछ हो गया, देन यू कैन पिंग मी, बिकॉज मेरा नंबर तो सबके पास है, आप लोगों के पास है, ठीक है? सो अगर कुछ ऐसा है तो आई बी एबल टू आंसर यू गाइस. अभी भी मैं बता रहा हूँ, एक हमारी एक स्टूडेंट है जिया, शी इज फ्रॉम MP. I'm like, once in a blue moon, once or twice in a month, she says like, sir, I need half an hour of your time. क्या करना है सर? जूम पे मैं बताऊंगी. Wherever she gets stuck, she tries to take time on a weekend. और फिर वो ये है कि भाई सर मेरा ये स्क्रीन है, मैं यहाँ पे स्टक हो गई हूँ, अब मैं आगे क्या करूँ? So I guide her that okay fine, continue with this, or you are going in the wrong direction, edit it, delete it and all. So it's okay, because unless until there is no hand holding, you guys probably, and my vision is at least I can see everyone among you is an entrepreneur and trying to be an entrepreneur. So I feel at least 15-20 entrepreneurs to be getting ready with the help of digital marketing, and this is something which helps your business to grow. Let's see, let's hope for the best. And then I request, of course, this is not something that I provocate you guys,
but yes, talk to Mr. Udipan or talk to Kanyakumari, Ms. Kanyakumari, saying that you guys need real-time live projects to work on, either of PSA or anything else. So start asking it, but don't say that. Of course, this video is a proof that I am saying it. सर आप तो भलाई के लिए ही बोल रहे हो. I'll cut it, then I'll cut it. मेरे को कुछ और तो नहीं, हाँ? Right. So I'll do that, but I'll talk to them in case, because they were talking about some kind of assignments, but somehow because this Mr. Bapaditya left in between, so the new team is facing certain challenge in terms of understanding it as well, because few of the things that I gave it already, but they were asking me multiple times, so I understood that thing. चलो देखते हैं, don't worry at all, but this is just initiation of the process. आप लोग किसी ना किसी के, I believe that you guys will be able to do it. It's not that big deal. Consistency चाहिए, जैसे आप लोग अभी 1 घंटा निकाले हो हर दिन, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लो, तो आप लोग चलते चले जाओगे. Right? ठीक है. So let's see, whatever will be the case, anyway we will get communicated in the group. और अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो पूछिएगा. Next week I am traveling. I'll be there in Delhi for 4 or 5 days, and then followed by that I have to go to UP Lucknow. So anyways, so but still I'll be active on WhatsApp, so may not be that easy for me to take live class, but yes, in case required, I'll schedule it and then try to contact you guys anytime. Right? Okay, sir. All right. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. All the very best. Thank you, sir. All the best, sir. Thank you. Welcome.